یہ سردیوں کی ایک یابستہ شام تھی کہ گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے چونکا اٹھایا۔ دوسری طرف عبداللہ تھا۔ جی ہاں، عبداللہ، جو ابھی پچھلے برس کالج کی تعلیم سے فارغ ہوا تھا۔ تب سے اب تک اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آواز کا سننا تھا کہ عبداللہ کا تر و تازہ چہرہ اور جوانی سے بھرپور گدرایا ہوا ڈول ڈیل آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ عبداللہ، ارے بھائی کہاں ہو تم؟ کیسے مزاج ہیں آج؟ کدھر؟ بول پڑے استاد محترم، کیا آپ نے مجھے یاد رکھا ہے؟ عبداللہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں ہاں بھائی، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ میرا لہجہ پرجوش تھا لیکن اس کی آواز افسردہ تھی، میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے پایا۔ اس نے بدستور گھٹی ہوئی آواز میں کہا، استاد محترم، آپ مجھ سے ملنے میرے گھر آئیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں خود آتا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ یہ نہ پوچھیے گا کہ کیوں، آپ تشریف لائیں گے تو وجہ خود جان لیں گے۔ عبداللہ نے نہایت افسردہ مگر سنجیدہ لہجے میں مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، جو میں نے باہوشی قبول کر لی۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر میں اس کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ اپنے کمرے میں ہے، آئیے۔ عبداللہ کا چھوٹا بھائی مجھے عبداللہ کے کمرے میں لے گیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عبداللہ بستر پر دراز تھا، پلنگ کے ایک طرف بیساکھیاں کھڑی تھیں، میز پر دوائیوں کی شیشیاں رکھی تھیں۔ عبداللہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور بامشکل تمام قدموں پر کھڑے ہونے کی ناکام کوشش کی۔ استاد محترم، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بڑی زحمت گوارا کی۔ نہیں، میں نے کوئی زحمت نہیں کی، معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بیمار ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا بتاؤں استاد محترم، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پچھلے برس کالج سے ڈگری حاصل کی تو کالج سے فراغت پانے والے دیگر نوجوانوں کی طرح مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ ایک نوجوان کی زندگی میں یہ وہ موڑ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے بھی نئی امنگ اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ زندگی کے سہانے دن تیزی سے گزرتے رہے۔ اس دوران کبھی کبھار سر میں ہلکا درد محسوس ہوتا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں نے ابتدا میں اس پر توجہ نہ دی اور مسکن ادویات استعمال کرتا رہا، جو میرے خیال میں درد کو دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ آہستہ آہستہ مسکن ادویات کا عادی ہو گیا، لیکن درد کو دبا دینا درد کا علاج نہیں ہوتا۔ درد کا سبب اپنی جگہ قائم تھا۔ یہ احساس میری تشویش کا اضافے کا باعث ہوا کہ میری نظر بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ ایک رات جب درد نے غیر معمولی شدت اختیار کی تو میں ایک مقامی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے ضروری ٹیسٹ کیے اور ایکس رے کرنے کے بعد کہا، سر کا اسپیشل ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے جو سر کے مختلف حصوں کو گہرائی سے فوکس کرے۔ یہ اسپیشل ایکس رے مشین ہمارے ہسپتال میں دستیاب نہیں۔ آپ کسی اچھی سی لیبارٹری میں جائیں جہاں یہ مشین موجود ہو اور ایکس رے کرا لائیے۔ کوشش کیجیے کہ یہ کام جلدی ہو جائے۔ میں اسپیشل ایکس رے کرانے کے لیے ہسپتال سے باہر آیا، حیران بھی تھا اور خوف زدہ بھی کہ ڈاکٹر مجھے اتنی زحمت میں کیوں ڈال رہا ہے۔ درد کے لیے کوئی اچھی سی مسکن دوا دے دیتا اور آنکھوں کے لیے قطرے، یوں مسئلہ ختم ہوتا۔ کیوں مجھے ڈاکٹر کی بات مان کر اسپیشل ایکس رے کروانا چاہیے یا 5 روپے کی درد کی گولی خرید کھاؤں اور گھر جا کر آرام سے سو رہوں؟ اسی شش و پنج میں لیبارٹری پہنچا اور ایکس رے کرا لیا، رپورٹ لیے واپس ہسپتال آیا اور رپورٹ ڈاکٹر کو پیش کی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کا بغور جائزہ لیا اور مجھ سے کہا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر، خیریت تو ہے؟ میں نے فکر مندی سے سوال کیا۔ جی بالکل خیریت ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے ٹیلی فون کا چونکا اٹھایا اور ہسپتال کے چند بڑے ڈاکٹروں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد 6 یا 7 ڈاکٹر کمرے میں جمع ہو گئے۔ میرے ڈاکٹر نے میری طبی رپورٹیں اور ایکس رے ڈاکٹروں کو دکھائے۔ تمام ڈاکٹروں نے طبی رپورٹیں دیکھیں اور ان پر انگریزی میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹروں کی مشاورت تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ اس دوران میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ لوگ کیا مشورے کر رہے ہیں؟ میرے ڈاکٹر کو کیا ضرورت پیش آئی دوسرے ڈاکٹروں کو بلا کر ان سے مشورہ کرنے کی؟ میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو اطمینان دلاتا رہا کہ ڈاکٹروں کی تو عادت ہے بات کب تنگڑ بنانے کی۔ مسئلے کی نوعیت چاہے معمولی ہو یا یہ لوگ مریض پر ہمیشہ روب جمانے اور اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک معمولی گولی جس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، ڈاکٹر اس کے لیے ٹیسٹ، ایکس رے، طبی رپورٹیں اور جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی بحث کے بعد ڈاکٹر یک کے بعد دیگرے کمرے سے نکلتے گئے اور صرف 2 ڈاکٹر کمرے میں رہ گئے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، عبداللہ، رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے دماغ میں رسولی ہے جس کا حجم تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت یہ رسولی آنکھ کے پٹھوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت آنکھ کی رگوں پر رسولی کا دباؤ بڑھا تو وہ پھٹ جائیں گی۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ تمہاری نظر بند ہو جائے اور دماغ کی رگ پھٹنے سے تمہاری موت واقع ہو جائے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، لیکن ان کا آخری جملہ میرے دماغ پر ہتھوڑے برساتا رہا۔ ممکن ہے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ ہائے، کس قدر خوفناک جملہ تھا یہ! میں مر جاؤں گا؟ کیا واقعی میں مر جاؤں گا؟ کیا میری جوانی رائے گاہ جائے گی؟ میری ملازمت، سہانے مستقبل کے خواب، میرے والدین کا کیا بنے گا؟ میں چلایا، ڈاکٹر صاحب، کیا، کیسے، کب رسولی؟ کیسی رسولی؟ کیا بات کرتے ہو؟ کہاں سے آئی یہ رسولی؟ کیوں پیدا ہوئی یہ رسولی؟ پھر جوانی میں یہ بیماری رسولی یعنی کہ کینسر؟
हाँ, तुम्हारे दिमाग में रसोली है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसका इलाज हो जाना चाहिए। गुजरता हुआ हर मिनट बल्कि हर सेकंड तुम्हें मौत के करीब कर रहा है। आज हम तुम्हें अस्पताल में दाखिल करके चंद ज़रूरी टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह सुबह सवेरे ऑपरेशन करके रसोली निकाल देंगे। डॉक्टर साहब ने अपनी ऐनक के शीशे को कपड़े से रगड़ते और सामने पड़े कागजात पर नज़र डालते हुए बड़ी लापरवाही और सर्द महरी से ये बात कही थी। मैं हिम्मतन गोश होकर डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा था। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। तुम पहले मरीज़ नहीं हो जिसका ये ऑपरेशन होगा। तुमसे पहले हज़ारों मरीज़ ऐसे ऑपरेशन के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से शफा याब हो चुके हैं। तुम नौजवान हो, मुसलमान और अक्लमंद हो, तुम्हें तसल्लियों की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखते हुए बड़े इत्मीनान से कहते जाते थे। मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इनके कहे हुए अल्फाज मेरे जहन में गड़मड़ हो रहे थे। चंद ही अल्फाज ने मेरे जहन में बार पाया, रसोली कैंसर ऑपरेशन। खुदा न खास्ता ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत वाक़या हो गई तो मेरी वालदा कहाँ जाएंगी? वालिद जिनकी उम्र 70 से तजावज़ कर चुकी है, इनका क्या हाल होगा? मेरे भाई, मेरी छोटी बहन है, क्या वो बड़े भाई की जुदाई बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या मैं तनहा कब्र में जा उतरूँगा? मैं पुलिस रात को कैसे पार करूँगा? कैसे, हाँ कैसे? मेरे मनसूबे कहाँ गए? मेरी डिग्री, शादी की तैयारियाँ, नई मुलाजमत, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? मेरे अंदर सवालों का तूफान बरपा था। सोचों का बहर ना पैदा किनार वजन था और मैं इसमें गोते खा रहा था। मेरा ज़मीर ववेला कर रहा था। हाय, मैंने अल्लाह के हक़ में बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया। ऐ काश मैंने आखिरत की ज़िंदगी के लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर रखा होता। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें जो मैंने मुहैया की हैं, वो तमाम मकासद जो मेरा नस्ब-ओ-लैन है, यूँ इतनी आसानी से फ़ना हो जाएंगे। आहा, ये ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है। अल्लाह की कसम, मैं तो हमेशा धोखे में मुबतला रहा। नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा, लज़्ज़तों से शाद काम होता रहा और भूल गया कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। बुरा हो इस दुनिया का, ये बहुत कम हँसा कर बहुत ज़्यादा रुलाती है। चंद रोज़ खुशियों के आंगन में झूला झुलाती है, फिर उम्र भर गम के पत्ते सहरा में झुलसने के लिए छोड़ देती है। खुश नसीबी के दिन यहाँ थोड़े हैं, फिर बदबख्ती की तवील सुनसान रातें आदमी का मुकद्दर बन जाती हैं। यूँ मैं अपने आप को सख्त मलामत करता रहा। डॉक्टर साहब ने चंद कागजात मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ऑपरेशन के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। यूँ अस्पताल में दाखिले की कार्रवाई पूरी हो गई और तुम्हारे लिए बेड का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं फटी फटी या नज़रों से डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगा। लो, दस्तखत करो, देख क्या रहे हो? नहीं, मैं किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। क्यों दस्तखत नहीं करोगे? पागल हो क्या? इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुमने क्या समझा है ऑपरेशन कोई खेल है जिसके लिए हम सर तलाश करते फिरते हैं? ये मामला बड़ा अहम है, तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे। नहीं, मैं हरगिज़ दस्तखत नहीं करूँगा। देखो, हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत कर देने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम तुम्हारी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाएं। मैंने कागज़ हाथ में लिया और इसमें लिखा था, मैं मुसम्मा फ़लाँ वल्द फ़लाँ इकरार करता हूँ कि किसी दबाव के बगैर महज अपनी खुशी से फ़लाँ अस्पताल से निकल आया हूँ। मैंने खामोशी से कागज़ पर दस्तखत किए और अस्पताल से बाहर आ गया। हैरान था कि कहाँ जाऊँ, घर जाऊँ और वालिदैन को बताऊँ, अस्पताल वापस चला जाऊँ या किसी और अस्पताल जाकर दिखाऊँ। फौरी तौर पर यही फ़ैसला किया कि किसी और अस्पताल जाकर चेकअप करवाना चाहिए। एक बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से कहा कि मेरे सर में दर्द रहता है, नज़र भी कमज़ोर पड़ती है। ज़रूरी टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा कि सर का स्पेशल एक्सरे करना पड़ेगा जो सर के तमाम गोशों की गहराई से फोकस करे। ये सहूलत फ़िलहाल हमारे यहाँ मैसर नहीं। आप फ़लाँ लेबार्टरी जाएँ और ये टेस्ट करा लीजिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो ये काम कीजिए। मैं अस्पताल से निकला, अपनी गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में पड़ी एक्सरे रिपोर्ट जो पहले करा चुका था उठाई और डॉक्टर को जा दिखाई। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, टेस्ट क्यों नहीं कराया? ये लीजिए, ये टेस्ट मैं पहले करा चुका हूँ। डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट ली और इसको गौर से पढ़ना शुरू किया। मुझ में खड़े होने की सकत नहीं थी। मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अब के पहले से ज़्यादा साबित कदम था। दिल को इतनी घबराहट नहीं थी। अल्लाह का ज़िक्र मेरी ज़ुबान पर जारी हो गया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमज़ाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो वसीयत की थी वो याद आई। और जान लो कि जो बात तुम्हें पेश आनी है वो पेश आके रहनी है और जो बात तुम्हें पेश नहीं आनी वो पेश नहीं आनी। और जान लो कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है और तंगी के साथ आसानी भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत मुबारक मुझे याद आई तो दिल के जैसे करार आ गया। परेशानी ना रही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? रसोली तो क्या है? रसोली का मैं कोई पहला मरीज़ तो नहीं और आ ही नहीं। और वालिदैन, भाई और बहनें दो रोज़ आंसू बहाएंगे, फिर भूल भाल कर अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे। डॉक्टर ने टेलीफोन का चौंका उठाया और अस्पताल के चंद बड़े डॉक्टर को कमरे में बुलाया। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी। ता देर बहस करते हुए रहे। मैं किसी बुरी
खबर के इंतज़ार में था, ताहम ज़्यादा परेशानी नहीं थी। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। इंतज़ार ने तौलत इख्तियार की तो मैंने डॉक्टर से मुखातब हुआ। डॉक्टर साहब, क्या बात है? खैरियत तो है? आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। डॉक्टर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। कोई घंटा भर डॉक्टरों की बहस जारी रही। आखिर एक के बाद दीगरे सब डॉक्टर कमरे से निकल गए। मेरा डॉक्टर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, देखिए, आप मुसलमान हैं और नौजवान हैं, आपको हौसले से काम लेना होगा। होता वही है जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है। रिपोर्टें बता रही हैं कि आपके दिमाग में एक रसौली है जो खौफनाक तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त ये रसौली आँख के पट्टों पर असरअंदाज हो रही है। किसी भी वक्त ये दबाव बढ़ा तो आपकी नज़र जा सकती है। ये भी मुमकिन है कि दिमाग की रग फूट पड़े और आपकी मौत वाक़या हो जाए। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आप अस्पताल में दाखिल हो जाएँ और आज ही रात ऑपरेशन करके ये खतरनाक रसौली निकाल दी जाए। डॉक्टर इतना कहकर खामोश हो गया। मेरे लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन चूँकि मैं पहले से तैयार था, इसलिए मैंने नहायत इत्मीनान से ये खबर सुनी। डॉक्टर को भी मेरे इत्मीनान पर ताज्जुब हुआ। मैंने टेलीफ़ोन लिया और वालिद से रब्ता किया। वालिद तशरीफ़ लाए और बड़े बूढ़े उम्र मुतजावज़। हाय! इस मेहरबान आदमी ने मेरी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए कितनी जद्दोजहद की। अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे। मुझे बूढ़े वालिद पर बे-इख्तियार रहम आया। वालिद मेरा उतरा हुआ चेहरा और जर्द आंखें देखकर ठटके खड़े पाँव पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? मैंने कहा, अभी जान, मेरे सर में दर्द रहता था। एक अस्पताल में दिखाया, उन्होंने ज़रूरी टेस्ट किए। इस अस्पताल में चेकअप कराया। इन लोगों ने भी चंद टेस्ट किए और बताया कि मेरे दिमाग में रसौली है और मुझे जल्द अज जल्द ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैंने कमाल इत्मीनान से तमाम सूरत हाल वालिद के गोश गुजार की। वालिद के लिए ये अंदोहनाक खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। ज़मीन पर बैठ गए, ज़ार-ओ-क़तार रोने लगे। रसौली रसौली, अल्लाह माफ़ करना, अल्लाह करम करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबीयत ज़रा संभली तो कहने लगे, तुम्हें भी अब्दुर्रहमान के पास अमेरिका चले जाना चाहिए ताकि वहाँ तुम दोनों का बेहतर इलाज हो सके। मेरा बड़ा भाई अब्दुर्रहमान कैंसर का मरीज़ था और तकरीबन साल भर से अमेरिका में ज़ेरे इलाज था। वालिद ने उसकी खातिर बड़े दुख उठाए थे। कितनी ही मरतबा मैंने देखा कि टेलीफोन पर अब्दुर्रहमान से बात हुई तो रो पड़ते। रातों को उठकर अब्दुर्रहमान के लिए दुआएं करते। अब्दुर्रहमान के नन्हे मुन्ने बच्चे आकर पूछते, दादा जान, अब्बू कहाँ हैं? सब बच्चों के अब्बू हैं, हमारे अब्बू नहीं। कहाँ हैं हमारे अब्बू? वालिद क्या जवाब देते? बस जहर के घूंट पी कर रह जाते। वालिद की हालत बड़ी काबिल रहम थी। इन पर रह रह कर तरस आता था। उनके बेटे एक के बाद दीगरी आंखों के सामने मर रहे थे। 2 बरस पहले मेरा भाई खालिद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। अब्दुर्रहमान अमेरिका में मौत से बरसरपकार था और मैं भी मौत के रास्ते चल निकला था। वालिद डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जा हुए और दिल का कड़ा करके मर्ज़ की कैफियत के बारे में पूछना चाहा, लेकिन रहमत पादरी गालिब आ गई। ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकला, अलबत्ता आँखों से आंसू जारी हो गए। डॉक्टर ने तसल्ली दी, परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो मामला बहुत आसान है, आप इत्मीनान रखिए। वालिद कहने लगे, डॉक्टर साहब, आप हमें अब्दुल्ला की रिपोर्टें दे दीजिए, हम इसे इलाज के लिए अमेरिका भेज देते हैं। डॉक्टर को क्या इतराज़ हो सकता था? वालिद ने रिपोर्टें ली और आना फाना जहाज़ के टिकट कराए और मैं अमरीका रवाना हो गया। शाम होने को थी जब मैं अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में दाखिल हुआ। डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी चंद ज़रूरी टेस्ट किए और अगले रोज़ सुबह सवेरे मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। अजीबोगरीब खौफनाक कमरा था। इधर उधर ऑपरेशन के आलात रखे थे, कटर, छोटी बड़ी कैंचियाँ। यूँ लगा जैसे मैं किसी पोस्टमार्टम रूम में आ गया हूँ। खामोश गमज़दा चेहरे, जज्बात से आरी पथराई हुई आंखें, डॉक्टरों के बेरहम हाथ जो चीर फाड़ करने के आदी होते हैं। यहाँ मुझ पर मेरी नहीं, डॉक्टरों की मर्ज़ी चलनी थी। मुझे स्ट्रेचर से उठाकर ऑपरेशन की मेज़ पर उठा दिया गया। बस बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने स्मीम कलब से अल्लाह ताला को याद किया। ज़िक्र इलाही आप ही मेरी ज़ुबान से जारी हो गया। अब मैं ऑपरेशन शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी नज़रें आस-पास खड़े लोगों के चेहरों को टटोल रही थीं। हाथ बेहतियात सर को जा लगा। हाय बेचारा मेरे सर, थोड़ी देर के बाद तेरा क्या हाल कर दिया जाएगा। कमरे में मौजूद छोटे डॉक्टर और नर्सें बड़े डॉक्टर साहब के इंतज़ार में थे। एक दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया जिसके चेहरे पर नकाब था। सिर्फ आंखें दिखाई देती थीं। इसने मुझसे हाथ मिलाया और छोटे डॉक्टर को इशारा किया। छोटा डॉक्टर एक बड़ा सा, हाँ अल्लाह की कसम, बड़ा सा टीका उठा लाया। टीके की सुई मेरी टांग में चुभो दी गई और मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। बड़े डॉक्टर ने मेरे सर के बाल मोड़े और सर की जिल्द को गोलाई में काट डाला। खोपड़ी की हड्डियों का ढांचा उतारा और सोली निकाल दी और हुजम में अंडे से कदरे बड़ी थी। ऑपरेशन की कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी थी कि दिमाग की रगों में खून का दबाव अचानक बढ़ा। अगले ही लम्हे खून की हरकत मौकूफ़ हुई और दिमाग की शरियानों में खून जम गया।
डॉक्टर घबराहट में इन पट्टों को हरकत दे बैठा जो दिमाग के पिछले हिस्से से मुتصل होते हैं। दिमाग का यह हिस्सा जिस्मानी तवाज़ुन का मरकज़ होता है। नतीजा साफ ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पर जिस्म का बायां हिस्सा मफलूज हो गया। डॉक्टर के तो हाथ पैर फूल गए। ऑपरेशन वहीं छोड़ा, खोपड़ी की हड्डी वापस रखी और जल्दी जिल चढ़ाकर टांके लगा दिए। मुझे आना फाना स्ट्रेचर पर डाला। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में आमतौर पर वही मरीज़ लाया जाता है जिसके बचने का इम्कान करीब करीब मादूम होता है। ऑपरेशन के बाद मैं पूरे 5 घंटे बेहोश रहा। फिर मेरी बाएं टांग में दौरान खून मुअत्तल हो गया। फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। डॉक्टरों ने मेरा सीना खोला और दिल की एक शरेयान पर छोटा फिल्टर नस्ब किया। 4 ही घंटे गुजरे थे कि फेफड़ों की रग फूट बही और इसमें सैलाने खून होने लगा। डॉक्टरों ने दूसरी बार मेरा सीना खोला, फूट बहने वाली रग की मरम्मत की और फेफड़े से खून साफ किया। डॉक्टर एक के बाद दीगरे सर उठाने वाली बीमारियों और मेरा लम्हा ब लम्हा बदलती हालत से तंग आ गए। अजीब और गरीब मसाइल का सिलसिला था जो ख़त्म होने में नहीं आता था। 24 घंटे इसी हालत में गुजरे तो डॉक्टरों ने ज़रा इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इत्मीनान की ये घड़ी बड़ी मुख्तसर साबित हुई। आन की आन मेरे जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। डॉक्टर ने फौरी तौर पर नई सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस हड्डी के नतीजे नीचे रसौली निकाली गई थी, इसमें शदीद सोजश पैदा हो गई है। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हड्डी को निकाल कर इसे जरासीम से पाक कर दिया जाए ताकि सोजश के जहरीले असरात दिमाग तक ना पहुंचने पाएँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन टीम को बुलाया। मैं इनकी तरफ देखने लगा। कुछ भी तो मेरे बस में नहीं रहा था। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और फिर मुझे रोना आ गया। ज़ार-क़तार रोया और शिद्दत से ख्वाहिश की कि मरने से पहले मैं अपने वालिदैन को देख लूँ, उनके हाथ पाँव को बोसा दे लूँ। मैंने अल्लाह को पुकारा और इससे मदद तलब की। ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी आ लगी है और तो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। निगाह आसमान की तरफ उठाई और पुकारा, या अरहमर राहिमीन, ऐ रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ये बीमारी मेरे गुनाहों की सज़ा है तो तुझसे बख्शिश का और रहमत का सवाल करता हूँ। अगर ये आजमाइश है तो मुझे आजमाइश से पर सब्र करने की तौफीक दे। मैं रोने लगा। इर्द गिर्द खड़े डॉक्टर और नर्सें अंग्रेज़ी ज़बान में चिल्ला चिल्ला कर बोलने और मुझ पर बरसने लगे। मैं उनकी ज़बान तो नहीं समझता था, अलबत्ता जानता था कि खामोश होने को कह रहे हैं। मैंने कमाल ज़ब्त का ज़ाहिरा करते हुए अपने आप पर काबू पाया और खामोश हो गया। ज़िंदगी की इन बेहद नाजुक घड़ियों में मुझे मौत याद आई और जो दुनियावी लज़्ज़तों को खाक में मिला देती है। मैंने सोचा कि दुनिया की चकाचौंध कितनी बेतुकीर है, ये चमक दमक कितनी आर्जी है। दुनिया मुझसे मजाक करती रही और मैं बड़ी आसानी से उसके मजाक का निशाना बनता रहा। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, किस कदर नादान हूँ। खैर वहाँ हूँ ने लाख समझाया, मगर मैं हमेशा टाल मटोल करता और कहता रहा, तुम देखना अनकरीब तौबा करके नेकी की राह अख्तियार कर लूँगा। लेकिन सदा अफसोस, मैंने तो तौबा नहीं की और जदा खैर का राही नहीं बना। मेरी जवानी ने और जवानी की बेपनाह उमंगों ने और दुनिया की आसाइशों ने मुझे धोखे में मुब्तला किए रखा। मैं भूल गया था कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी तो आसाइशों का सामान रखना ज़रूरी था। लेकिन आज जब अज़ियत में मुब्तला हूँ और कवी और मज़ाहमहल हो चुका हूँ तो क्या हो सकता है। और अजब नहीं कि कल कलां को नंगी ज़मीन पर मेरा बिछौना बन जाए, तब क्या होगा। काश मैं रातों को उठ उठ कर क़याम किया करता, दिन को रोज़े रखा करता। जिस्म कमज़ोर हो जाता, रंग और रूप मांद पड़ जाता। मैंने सोचा जब हशर बपा होगा और गवाहान हाजिर किए जाएंगे, नफसा नफसी का आलम होगा, पुलसरात पर पाँव फिसल फिसल जाएंगे। जब अमाल को तराजू में रखा जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। दुनिया में लोगों पर जुल्म करने वाले इस रोज़ अंधेरों में भटकते फिरेंगे। 400 अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा। मामूली सी मामूली बात भी अमाल नामे में लिखी मिलेगी। गुनाहों से भरा अमाल नामा आदमी के हाथ में दिया जाएगा तो सिवाय हसरत और नदामत के क्या बाकी रह जाएगा। लोगों की एक जमात जन्नत में दर्जात आलिया पर फायज होगी और दूसरी जमात जहन्नम की गहरी खाइयों में जा पड़ेगी। आदमी और उसके अच्छे या बुरे अंजाम के दरमियान फासला ही कितना है। सिर्फ एक लम्हे का, मौत का एक लम्हा जो इंसान को इसके अंजाम से हमकिनार कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे खदशा हुआ कि रोज़े क़यामत चीखूँगा, चिल्लाऊँगा और फ़रियाद करूँगा, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में लुटा दे कि अब नेक काम करूँगा, गुनाह के करीब भी नहीं भटकूँगा। लेकिन जवाब दिया जाएगा कि तुमने उम्र गवा दी, अपना वक़्त पूरा कर चुके। वो इम्तिहान था जो एक बार लिया जाता है। आज नतीजे का दिन है। एक ही मौका था जो तुम ज़ाया कर चुके।
अब पशेमानी के आंसू बहाओ, हसरत की सर्द आहें भरो कि कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। फिर मेरी सोचों का दायरा बदला, मुझे मरने वालों पर सख्त ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे जतन करते हैं माल जमा करने को, लेकिन माल से इस्तिफादा नहीं कर पाते। बड़े बड़े आलीशान घर तमीर किए जाते हैं, लेकिन इनमें रहना नसीब नहीं होता। तो फैस दुनिया पर इसका आगाज़ मुसीबत है और अंजाम फना। यहाँ हलाल कमाओ, खाओ तो हिसाब देना पड़े, और हराम का एहतसाब करो तो सज़ा भुगतनी पड़े। अपनी हालत पर गौर किया, मैं क्या और मेरी औकात क्या। ज़िंदगी महदूद, दिन गिने चुने, अंजाम मौत और कब्र की तारीकी। रोज़े क़यामत जब कदम डगमगाएंगे, चार सू हाहाकार मचेगी, पछतावे की घड़ियाँ तवील से तवील तर होती जाएंगी। हर छोटी बड़ी बात का हिसाब लिया जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी तो ख्वाब की तरह मालूम होगी। इस रोज़ मेरा क्या बनेगा। मैं रो दिया, बिलक बिलक कर रो दिया। मैंने मुल्तजाना दुआ की, ऐ अल्लाह थोड़ी सी ज़िंदगी और दे दे कि तुझसे अपना ताल्लुक़ इस्तवार कर लूँ। तू मुझसे रूठा है, ज़रा सी मोहलत और दे दे कि तुझे बना लूँ। मुझे और ज़िंदगी दे दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से ना होगी मेरे गम की तर्जुमानी। डॉक्टर मेरे करीब ही था। मैंने बीमारी के मतलब पूछना चाहा और दरियाफ्त करना चाहा कि बीमारी तोल क्यों पकड़ती जाती है, इसलिए इतनी फ़िक्रमंदी क्यों, इतना एहतमाम कैसा। लेकिन डॉक्टर ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बेहोशी का टीका लगाने का हुक्म दिया। मैं होश हवास से बेगाना हुआ तो इसने कील कांटे संभाले, सर की जिल्द एक मरतबा फिर उतारी, हड्डियों को निकाल कर इस तरह एक तरफ रखा और जिल्द को हड्डियों से महरूम कर दिया। सर पर वापस चिपका और टांके लगा दिए। ये खतरनाक ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। ऑपरेशन के एहतमाम पर मुझे इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। होश में आया तो देखा कि बदन पर मुख्तलिफ आलात नस्ब हैं। एक काला धड़कन को नोट कर रहा है तो दूसरा खून के दबाव का अंदाज़ा बता रहा है। तीसरा सांस की आमदोरफ्त का पता दे रहा है। जो वो मुलाजम जो बीमारों की देखभाल पर मामूर होते हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। पहले तो कुछ समझ में ना आया कि कहाँ हूँ और ये लोग कौन हैं। फिर याद आया कि मैं अमेरिका में हूँ और अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। बेहतियार सर को हाथ लगाया, वो नरम था। अरे सर की हड्डियाँ किधर गईं? अभी कल ही तो मेरा सर सही सलामत था। मारे अफसोस के रोने लगा कि इन लोगों ने मेरे सर का क्या हाल कर दिया। डॉक्टर से पूछा, मेरा बाकी सर कहाँ है? इसने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, तुम्हारे सर की हड्डियों में सोजिश थी, हमने इन्हें जरासीम से पाक करने के लिए अपने पास रख लिया है। तुम्हें 6 माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हड्डियाँ तुम्हारे सर में लगा दी जाएंगी। चंद रोज़ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रहा, फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अमेरिका में महीना भर क़याम के बाद रियाज लौट आया। अब इस इंतज़ार में हूँ कि कब 6 माह का अरसा गुजरेगा और कब बकिया सार लेने अमेरिका जाऊँगा। अब्दुल्ला की कहानी ख़त्म हुई। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूरी तवज्जो से अब्दुल्ला की कहानी सुनी थी और सख्त हैरान था कि देखते ही देखते आदमी की हालत क्या से क्या होती जाती है। खाते पीते गिराने का तन जवान पल की पल में साहिब फ़राश हो गया। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ कुल कायनात की बाग दौड़ है, जो हुक्म चलाता है और जिस पर किसी का बस नहीं चलता। वाकई ये दुनिया कितनी आर्जी है। आखिरत ही इंसान का असली मुस्तकर है। इसके बाद मैं गाहे अब्दुल्ला को देखने जाया करता। इलाज बराबर जारी था। अल्लाह ताला ने इस पर रहमत की। फालज का असर जाता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कई दिन गुजर गए। मैं अब्दुल्ला की तीमारदारी के लिए वक़्त ना निकाल सका। एक रोज़ अब्दुल्ला ने ही मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो सर की हड्डियाँ लगवाने अमेरिका जा रहा है। वो अमेरिका से लौटा तो मैं उसे मिलने गया। इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया था। सर की हड्डियाँ ठीक ठाक अपनी जगह नस्ब थीं। अब्दुल्ला शफ़ायाब हो चुका था और उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर थी। उसने मुस्कुराते हुए शादी का दावतनामा मेरे हाथ में दिया और कहा कि आप मेरी शादी में शरीक ना हुए तो मैं रूठ जाऊँगा, इसलिए आपको लाजमत ज़हमत करना पड़ेगी। मैंने इसे शादी में शिरकत का यकीन दिलाया और इजाज़त देकर लौट आया। शफ़ायाबी के बाद अब्दुल्ला की काया पलट गई। अब मोहल्ले के खुशहाल और नेक नौजवानों में अब्दुल्ला का शुमार होता था। वो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता और तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम देता है। रब ताला ने सच ही तो फरमाया है, तो बहुत मुमकिन है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बड़ी खैर कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे। आमीन।